Hello everybody. I hope all of you are great. So today I'm with new topic that we are going to explore. As you already know, that is scientific notation. So I hope that today we have no any communication gap regarding this live class. Though yesterday I had a problem with my internet connection, so those who are live, they can let me know that screen is visible as well as my voice is audible, so that we start quickly. Okay, thank you. So here we go, and that is our today's topic, that is scientific notation. So what does it mean exactly by this term, scientific notation? So it is a specific, a concise way to express, present, write or handle very large numbers or very small numbers. So that's why we use scientific notation mostly in natural sciences, right? To handle easily handle, okay? To easily handle either very large numbers or very small numbers. So that's why we use scientific notation. या तो बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज नंबर होते हैं हमारे पास, या बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे, हम हैंडल ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इसको उसी को रिप्रेजेंट और कम्युनिकेट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन, तो हमारे पास तकरीबन 1.988 times 10 to the 30th. What does it mean? It's mean that very large number है ना, mass of the sun है, ठीक है? So this means that this is the leading figure or digit, while these digits followed by 30 zeros. अब टाइम भी वेस्ट होगा अगर हम मतलब 1.9 और 1.98000000 लिख के, तो टाइम भी वेस्ट होगा और इजिली मैनेजेबल भी नहीं होगा. So that's why we use scientific notation. Now let's take another example for another side, that is very small, and let's say we have mass of hydrogen atom, mass of H atom, very small है ना, mass तो मतलब invisible है to naked eye, ठीक हो गया? So that is around 1.67 times 10 to the negative 24, ठीक हो गया? So it is very small. Why? Because we have negative
its exponential form. So it's mean that 1.67, let me write it, 167 precedes around 34 zeros, या आपके पास इससे पहले 167 से पहले आपके पास 24 zeros हैं. तो अभी मतलब एक्सेप्टेबल तो है लेकिन मैनेजेबल नहीं, इस वजह से हम ये यूज करते हैं. ओके नाउ ये तो मतलब इसके जनरल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, या तो मतलब लार्ज नंबर है या स्मॉल नंबर है. अब आते फ्यू मोर एग्जांपल, फ्यू जनरल एग्जांपल, ठीक है. सो लेट मी चेक दैट वी आर गोइंग गुड, आई होप सो. ओके, थैंक यू. So let's say we have 4.9, it is, should be gone, yes. So 0 0 and 0 0 and 0, anything you like. Okay, ये एक number है, so you want to convert this number into scientific notation to make it manageable. Okay, so that is easy. This is called leading digit. जो मेन चीजें हैं वो अपने साथ लिख लिया करिए ताकि आपको याद हो, ठीक है. When you do something, so you own it. Okay, that become the part of your personalities. ठीक हो गया. ये लीडिंग जीरोज हैं या क्या है, ये मतलब 4 है. आगे जीरोज है ना, इसको हम जो भी मतलब डिजिट्स या नंबर्स आते हैं उसको हम एक्सिलरी या सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, ठीक है. इन साइंटिफिक नोटेशन दैट इज नॉट सो वर्दी. ठीक हो गया. सो वी राइट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू scientific notation. So that is the leading zero. We have to represent this as a leading zero in scientific notation, like 4.9, and then we have how many digits or number followed by this leading zero. So let's count it. We have 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So times 10 to the 9. ठीक हो गया, आसान सी चीज है. Now let's do another example. For example, we have 2.4, कोई भी नंबर ले ले, 3 से 2 7 है, ठीक है. वैसे तो ये मैनेजेबल है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें, सो यू कैन डू इट इजीली बाय, नो इट इज नॉट, लेट मी करेक्ट इट. क्या प्रॉब्लम है, हो गया. अच्छा, इसमें ये नहीं है, ठीक है. So this is again leading digit, and then you have to understand that how many digits are number followed by leading number or digit. So that is 4. So 2 times 4 times 10 to the 4. ठीक हो गया. इस तरह अगर हमारे पास एक और नंबर है, लेट्स टेक 0.005 and 5, right? So to convert this, वैसे भी ये पहले डेसिमल फॉर्म में है, ठीक हो गया. So you need to move this decimal point into right how many places to get acceptable number. So 1 2 and 3. So 5.5 times how many places we have moved, so that is 3 places, right? Times 10 to the 3rd, but that is negative. Why? Because as we already discussed in yesterday's session, that when you move
decimal point to the right, so the value will be increases, while when you move decimal point to the left, so its value will be increases. ठीक हो गया? तो इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन लगा दिया. ओके, I repeat, then when you displace decimal point to the left, so its value increases, right? And when you displace decimal point to the right, so its value increases. Keep in mind, write it so that you on it. Now do some operations regarding scientific notation. So let's say we have, if we talk about addition, generally कोई भी नंबर ले ले, ठीक है, 4.1 टाइम्स 10 to the second plus 5.2 टाइम्स 10 to the 2, ये क्या ले रहे, तल ले रहे, ठीक है, तल. ठीक हो गया? So what we need to do now, अब इसको किस तरह ऐड करेंगे? So make it handable. To make it handable, we need to move this decimal point to the left, so that its value increases. 1, ठीक हो गया? तो पॉइंट इधर आ गया, ठीक है. यहाँ मैं इसको वो करता हूँ 0.4, yes, 1 times 10 to the, यहाँ आ गया, वैल्यू इंक्रीज हो गया, टाइम 10 to the third, मल्टीप्लाई प्लस 5.2 times 10 to the third. ये हमने इसलिए किया कि हमें ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है और उसकी खासकर जो ये एक्सपोनेंट है, ये हमें दोनों का कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए. इस वजह से हम ये करते हैं, ठीक है. फिर हम जो है ना आसानी से ये कर सकते हैं. अब इसको मतलब क्या करें, इसको एडॉप्ट करें आसानी से. सो दैट इज व्हाट 0.41 by avoiding exponential term, ठीक है. इसको हम, लेट मी राइट इट, इसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म कहते हैं. ठीक हो गया? और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिजिट टर्म कहते हैं, डिजिट टर्म. More specifically, we say 10 is base, while this, the power of 10 is called exponent, right? अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो वो क्या है? आपने जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको इग्नोर करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, खासकर. तो ये 0.41 हो गया और ये 5.2 हो गया, ठीक है. बाकी ये तो आसान है, ठीक है. जब इसके मतलब आंसर आ जाए तो आपने फिर जो है ना ये वाला क्या, इसमें से एक को आपने कॉमन लेना है. मतलब ये क्या है, तल है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडिशन है, सॉरी नॉट सब्ट्रैक्शन, ठीक है. तो इसको आपने जो according to rules, when we have situation like x to m times x to m, तो आपने क्या करना है, ये तो मतलब सेम बेस होगी. याद आपके पास 10 है दोनों के टर्म में, ठीक है. तो x to the n plus m, ठीक हो गया. ये रूल है, एक्सपोनेंशियल रूल है, जो आगे जाके कल हम ये डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है. जब आंसर आ जाए तो आपने फिर उसको मतलब ये जो एक्सपोनेंट है इसको एड अप करना है और उसके साथ आंसर के साथ लगाना है. ठीक हो गया?
इस तरह सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में आपने भी वही उसी इस तरह काम करना है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म और उसमें खासकर जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट हो, तो आपने क्या करना है, उसको मतलब डेसिमल पॉइंट को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मूव करना है, इधर लेफ्ट और राइट, और फिर उसे आगे जाके आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको सब्ट्रैक्शन है, तो उसको जब आपके पास ये सेम आ जाए तो आपने उसको फिर उसमें कॉमन लेना है। मतलब आप फॉर एग्जांपल वी हैव 10 टाइम्स 5 माइनस 10 टाइम्स 5, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, ये मतलब 10 टाइम्स 5 लिखना है, ठीक हो गया। आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया अबाउट इट। लेट मी नो दैट यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम खासकर पेपर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सपोज इफ ह्यूमन हार्ट बीट्स an average 72 पर मिनट। अगर एक मिनट में ह्यूमन हार्ट जो है ना एवरेज के हिसाब से 72 बीट्स होते हैं, तो आप इसको जो है ना जनरली अगर हम बात करें और के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, या घंटों में भी पूछा जा सकता है, स्पेसिफिकली 6 आवर्स, ठीक है, या मतलब मंथ्स के हिसाब से, या ईयर के हिसाब से। सो वी से दैट देन हाउ मेनी टाइम्स इट beats in आवर। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल ये बन गया, अगर मिनट में 72 टाइम्स बीट्स करते हैं तो हॉर में कितनी होगा, ठीक है। तो सिंपली आपने इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई ऐड करना है। क्या करना है, ऐड अप करना है। आपके पास 72 है और सो 1 आवर इक्वल्स 60 मिनट्स, ठीक हो गया। तो इससे क्या आ जाएगा, ये 0 times 0 2 0 and then 0 and then 62 times 12 1 carry and 6 times 7 equals 42 1 that is 43। तो आपके पास क्या गया 0 2 3 and 4, ठीक है। और फिर मतलब साइंटिफिक नोटेशन की कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी पूछा सकते हैं एंड देन convert, let's say convert answer into scientific notation, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है ना ये वाला आंसर आ गया। सो अगेन वी हैव 4 is leading 0 and 3 and 2 and 0, ठीक है। लीडिंग 0 आपने ये कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर लीडिंग जीरोस को फॉलो कर रही है, लीडिंग डिजिट, ठीक है। सो वी हैव 3 नंबर, सो यू कैन राइट 4.3 times 10 to the third, ठीक हो गया। ये इसका आंसर आ गया, ओके। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल आप खुद बना सकते हैं। Now we have nothing to do more with this topic. Okay, so one thing more about it, we have for example आपके टेस्ट के लिए, ठीक है, आपके पास ये वाला टेस्ट है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 1.7 times 10 to the 2 है, ठीक है।
और इस तरह एक और नंबर लेते हैं 11.3 टाइम्स 10 टू दी थर्ड ले ले, कोई भी नंबर ले ले, ठीक है। तो दोनों को आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक ये हो गया असाइनमेंट। दूसरा जो है ना, लेट्स से 7.3 टाइम्स 10 टू दी 5 मल्टीप्लाई बाय 9.4 टाइम्स 10 टू दी 4। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। इस तरह एक और 5.5 टाइम्स 10 टू दी 2 यू हैव टू एड देम with add them another like 4.9 times 10 to the third। तो ये आपके लिए आज का ये शॉर्ट टेस्ट हो गया। ओके, अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क, जल्दी जल्दी लिख के। एंड टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग एक्सपोनेंशियल सिस्टम, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, वही कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कल। It seems that there is no question at your disposal. So okay, so nice of you and see you then.